this window again. Okay, so we have seen two rules. Now see two more rule. क्योंकि always the equation may not be in homogeneous, always the equation may not be in a form where you can take out the x and y outside, and whatever left, that is a function of xy. Okay, so there are two more rules which says that if your your equation is not exact, okay, but what you are doing, if it is not exact, it means what? Your del m by del y is not equal to del n by del x. All right, so anyway, voice clear again? Yes, ma'am. Response is okay. Okay, good enough. So del m by del y is equal to del n by del x, then all right, this equation is exact. If it is not exact, then what will happen? Then there will be something after this subtraction. Okay, so what you do, if it is not exact, तो ठीक है, del m by del y माइनस del n by del x करो. ठीक है, उसके बाद क्या करो? उसके बाद चेक करो, if we divide it by n, and if whatever after this division, whatever remained is a function of x alone, मतलब ये जो भी आप कैंसिल आउट करने के बाद में, इफ यू गेट ओनली अ टर्म इन्वॉल्विंग x only, function of x alone, then integrating factor will be e की पावर इंटीग्रेशन में fx dx. All right, what it says? It says if equation is not exact, then del m by del y minus del n by del x will be something. So let's divide it with n. If you get a function of x alone, then that will be integrating factor. And if by dividing this with m, you get function of y alone, then integrating factor will be integration of gy dy e की पावर में. Okay, so the only difference is जब आप m से divide कर रहे हो, it should be del n by del x minus del m by del y. मतलब ये जो टर्म है आपकी ना, इसका निगेटिव. सो यहाँ पे या तो आप बाहर एक निगेटिव लगा दो और डू इट del m by del y minus del n by del x and then divide with m. सो दोनों रूल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. क्या बोल रहे हैं दोनों रूल? अगर आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, सो del m by del y minus del n by del x will be something. सो ट्राई डिवाइडिंग इट विथ n. अगर n से डिवाइड करके फंक्शन ऑफ x अलोन बच रहा है, या फिर m से डिवाइड करके फंक्शन ऑफ y अलोन बच रहा है, whatever is the case, the integrating factor will be e की power integration of that function. So if it is fx, so you will get fx dx का integration e की power में. If it is gy, you will get integration of gy dy e की power में. Okay, इस रूल में del m by del y minus del n by del x कर रहे हैं. थर्ड रूल में del n by del x माइनस del m by del y कर रहे हैं. तो अब ये कैसे याद रहेगा? तो ये याद रखो, आप एक ही यही सब्ट्रैक्शन लो, बाहर या तो 1/n कर दो या 1/-m कर लो. ठीक है, तो ये इसको याद रखने का तरीका है. अब क्वेश्चंस देखते हैं. जितने आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, उतने ही आपको रूल जो है वो लर्न होते जाएंगे. तो इनको अलग से लिख के याद करने की जरूरत नहीं है. इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करना इज द बेस्ट थिंग टू remember the rules. Okay, so homogeneous के examples so we have already seen. So now let's see the example of only and only involving the two rules. ये भी हमने अभी देखा example. Now look at some of the example based on rule number 3 and 4, the next two rules. Okay, so for example, let's try this question, which is 2x square plus y dx plus x square y minus x dy. So what we'll do, whenever we see this, try looking at whether it is in the variable separable form. No, it cannot be separated. So if it is not separated, then try go for the exactness. So let's put it as m. Let's
write this as n. So 2x square y is m, x square y minus x is n. अब इन दोनों को क्या करना है, एग्जैक्टनेस की कंडीशन चेक करनी है, डेल एम बाई डेल वाई एंड डेल एन बाई डेल एक्स, डेल एन बाई डेल एक्स. सो यहाँ पे इंटीग्रेट किया y को तो 1, यहाँ पे किया तो 2xy minus 1. A big difference. Okay, so these two are not same, but they are not also like the homogeneous. They are not also like you can take out the x and y outside. So यहाँ से तो x निकल रहा है, but यहाँ से नहीं निकल रहा है y, तो no point in that rule also. So now let's try this del m by del y minus del n by del x. So this minus this, so you get 1 माइनस 1 कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे ही रखो अब. सो यू गेट 2 माइनस 2xy, 2 आउटसाइड, यू गेट 1 माइनस xy. यहाँ पे जैसे ही आप आ जाओगे ना, इसको कंपेयर करना m से भी और n से भी, ये किसके जैसा लग रहा है, तो ये किसके जैसे लग रहा है 1 माइनस xy, इसके जैसा तो नहीं है, इसके जैसा लग रहा है. सो इसके जैसा लग रहा है तो n से डिवाइड करो, विच इज सिमिलर टू n. माइनस 2 एक्स वाई माइनस 1, हमने माइनस 2 भी बाहर निकाल दिया ताकि ये बिल्कुल आपको उसके जैसा ही दिखे. सो दिस इज सिमिलर टू n. सो नाउ लेट्स डिवाइड इट बाय n. n से डिवाइड करते तो सीधा 1 अपॉन n करते हैं हम. सो 1 अपॉन n क्या मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स, दैट इज एक्स, एक्स वाई माइनस 1, एक्स वाई माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गया, आपका बचा माइनस 2 अपॉन एक्स. सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ x alone. Very good. So now you can integrate, मतलब you can find out one integrating factor which is what, e की power exponential की power integration में fx dx. So पहले तो fx dx का इंटीग्रेशन कर लो और फिर उसको e की पावर में डाल देना, या सीधा सीधा लिखते रहो. So इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2 अपॉन x. So माइनस 2 इज अ कांस्टेंट, बाहर निकल गया, 1 अपॉन x dx क्या बन गया, log x. सो log x और log माइनस 2 को इस तरफ ले जाओगे तो x की पावर माइनस 2, और e और log कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, जो कि यहाँ लिखा भी हुआ है, e की पावर माइनस 2 log x. अब e की पावर log x स्क्वायर, सो e और log ने कैंसिल आउट किया, यू गेट सिंपली x की पावर माइनस 2. सो इट मीन्स व्हाट, आफ्टर ऑल दिस एक्सरसाइज व्हाट यू गेट, यू गेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर. हम क्या कर रहे हैं इन सब में, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ सम रूल्स. सो यहाँ पे ये सब कुछ करने के बाद में हमें मिला इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स की पावर माइनस 2. सो ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला. इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिव्स यू गारंटी कि जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे दैट इक्वेशन विल बिकम एग्जैक्ट. तो यहाँ पे न्यू एम डैश के लिए और न्यू एन डैश के लिए एक बार चेक कर लेना एग्जैक्ट है या नहीं है. ओके, चेक करने के बाद में वंस यू फाइंड कि हाँ ये एग्जैक्ट आ गया, तब फिर इंटीग्रेट करना. ओके, सो यहाँ पे तो सीधा ही इंटीग्रेट कर दिया है. इंटीग्रेट के बाद यहाँ पे c लिखा है. सो इट इज 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर का हो गया माइनस एक्स, और यहाँ पे टर्म फ्री फ्रॉम x, तो ये आएगा नहीं, एंड y का हो गया वाई स्क्वायर अपॉन 2c. ओके, सो दिस इज हाउ यू अप्लाई द अनदर रूल, थर्ड रूल. क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो नाउ नेक्स्ट डिफरेंशियल में अब क्या करना है आपको, एक क्वेश्चन क्लियर हुआ, नेक्स्ट पे जाओ, वो क्लियर हुआ, नेक्स्ट पे जाओ, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स नाउ. सो ये क्वेश्चन हो गया, तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट, 5x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 dx and x square plus 2xy dy. Now quickly let's see m and n is what, these two terms, del m by del y is 5x plus 8y, and del n by del y, del n by del x is 2x plus 2y. 2x 2y not exact, not in any of that homogeneous or rule 1 rule 2. So now let's try del m by del
y is not equal to del n by del x. So let's try the subtraction of this. It is 3x plus 6y. So 3 outside x plus 2y, which look like the n. ठीक है, तो n में अगर आपने x को बाहर निकाल दिया, it will be x plus 2y, x plus 2y बचा ना यहाँ पर भी, और यही आपका यहाँ पे भी आ रहा है x plus 2y. तो x plus 2y से x plus 2y को कैंसिल आउट किया, यू गेट 3/x. 3/x का इंटीग्रेशन किया 3 log x, दैट इज log x क्यूब. और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है आपका, e की पावर में दिस log x क्यूब, सो यू गेट x क्यूब. तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, बेसिकली इज द x क्यूब. सो इट्स नॉट ऑलवेज कि हमें डिवाइड ही करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करके भी आ जाता है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी आया उसको मल्टीप्लाई किया. अब आपने किया 5x की पावर 4, मतलब x क्यूब को मल्टीप्लाई जब कर दिया आपने, सो देर इज नो टर्म विच इज फ्री फ्रॉम x, और यहाँ पर यू विल ट्रीट y एज कॉन्स्टेंट. सो ये मिल गया आपका x की पावर 5, x की पावर 5y. ये बन गया आपका x की पावर 4y स्क्वायर. ये बन गया x की पावर 4/4, और यहाँ पे आ गया इज इक्वल्स टू c. तो एक बार जब आप एक रूल के 4 से 5 क्वेश्चंस भी कर लोगे ना, उसके बाद आपको बहुत सिंपल लगेंगे. ठीक है, अब रूल आ रहा है हमारा द नेक्स्ट रूल. 2 क्वेश्चन उसके देखते वी विल देन एंड अप द मीटिंग फॉर टुडे. सो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y4 plus 2y and xy cube plus 2x. मैम हाँ, मैम मैं ना बहुत देर से इन और आउट कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्क्रीन विजिबल नहीं है और पता नहीं कुछ ज्यादा ही नेटवर्क इशू हो रहा है आज. okay, so we have record also, तो maybe I will share you that recording on the classroom. आप उसको देख लेना. ओके, बाकी सबके थैंक यू. लिए नेटवर्क ठीक है? हाँ मैम. यस मैम. यस बाकी मैम. यस मैम ठीक है. रेस्ट ऑफ ओके. थैंक यू मैम. ओके ओके बच्चे. So y4 plus 2y and this is your m and this is your n. So now let's first see no variable separable form. ठीक है, तो अब एग्जैक्टनेस वाला चेक करते हैं. del m by del y चेक किया, del n by del x चेक किया, you get 4y cube plus 2 and you get y cube minus 4. ये तो 0 बन गया ना डिफरेंशिएशन में. So y cube minus 4 and 4y cube plus 2. Anyway, not same. So del m by del y minus del n by del x किया. 4y cube 2 minus y cube plus 4. So ये बन गया 3y cube और ये बन गया आपका 6. So y cube और plus 6, 3y क्यूब प्लस 6, तो 3 बाहर निकाल दो, आपका बन गया y क्यूब प्लस 1. अब ये 3y क्यूब प्लस 1 किसके जैसा है, n के जैसा तो नहीं है, m के जैसा है. n में से y निकाल देंगे ना. तो ये याद रखना बस कि जब आप del m by del y कर रहे हो माइनस del n by del x, जब m से डिवाइड करते हो ना तो ये साइन अपोजिट होता है. ये अपोजिट होता है, अपोजिट होता है मतलब आप यहाँ माइनस m कर दो. ठीक है, सो del n by del y माइनस del m by del x होता है फॉर्मूले में. सो इधर यू रिवर्स द साइन हियर और यू रिवर्स द साइन हियर. सो आपको ये माइनस बन गया आपका y क्यूब बाई 2 से y क्यूब बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस साइन 3 माइनस 3 बाई y. अगेन द e की पावर में जब इसको किया, और यूजुअली आपके इस तरह से होंगे, e और log कैंसिल आउट हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता, वैसे भी एग्जांपल्स रहेंगे. ठीक है, सो नॉट ऑलवेज कि आपका e और log आके और ये कैंसिल ही होगा. सो एनीवे यू गेट y की पावर -3, मतलब y की पावर -3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब y क्यूब से डिवाइड किया, y क्यूब से डिवाइड करो, और फिर जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी फॉर श्योर एग्जैक्ट.
and then the answer will be what? Yx plus 2 upon y square constant x, और यहाँ पर the term free from x is only 2y, so you get y square. Okay, so that is that much easy. You should know when to apply which rule. बस उतना आपकी प्रैक्टिस हो गई तो फिर बहुत आसान हो जाता है. अब इसमें एक बार क्विकली मैं देखना चाह रही हूँ, इफ यू आर गेटिंग समवेयर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन्वॉल्विंग द ई, तो एम और एन आपने देखा, आपने ये कर दिया, इसको चेक किया, इट इज नॉट ऑफ कोर्स एग्जैक्ट, तो आपने ये किया और अब आपको दिखा ये कैसा है, एम के जैसा है. एम के जैसा है तो विद अपोजिट साइन यू आर गेटिंग दिस इज 6 ओनली. सो e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ 6 dy, यहाँ पे क्या होगा, if it is a function of y alone, अब 6 is a function of y alone can be considered, so you get 6y. ये भी इंपॉर्टेंट है, जब आप m से डिवाइड कर रहे हो ना, it should be function of y alone, और जब n से डिवाइड कर रहे हो तो जो आपका फाइनल रिजल्टेंट है that should be function of x alone. so, अब आपने e की पावर 6y से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी अब पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, गुड इनफ. You get the exactness and then the integration will be what? फर्स्ट टर्म में ट्रीटिंग y as constant, तो ये तो कांस्टेंट के जैसा बाहर निकल गया, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ा. बट यहाँ पर ट्रीटिंग द टर्म्स फ्री फ्रॉम x, ये चला गया, ये चला गया, ये भी चला गया, एंड यू आर गेटिंग e की पावर 6y विद द y स्क्वायर. अब यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है, दिस विल इन्वॉल्व फ्यू कैलकुलेशंस विच यू शुड नो. तो I1 को इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान है, I2 पार्ट जो है, सेकंड पार्ट जो है, इसका इंटीग्रेशन देखो, अगर नहीं पता है तो इसको देख लो एक बार. क्या करोगे इसमें, यू हैव टू कंसीडर फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन टाइप एंड देन ओनली इट विल बी रिड्यूस्ड. ठीक है, सीधा सीधा नहीं होगा ये. सो फर्स्ट फंक्शन माना इसको, सेकंड इसको माना, अब y स्क्वायर बाहर, e की पावर 6y अपॉन 6 माइनस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, e की पावर 6y अपॉन 6, ये तो इंटीग्रेट हो गया है, इसको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो 1/3 बाहर निकल गया, y e की पावर 6y, अगेन फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन रूल लगाया हाईलाइट. क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि जो डिफरेंशिएट होकर के y आपका चला जाएगा, तो यहाँ पे y कुछ नहीं बचा, इट्स ओनली 1 है ना. ये टर्म तो ऐसे कैसे आ गई, 1/3 ऐसे आ गया. y e की पावर 6y का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हुआ, सो y आउटसाइड e की पावर 6y अपॉन 6 एंड देन y इज 1, डिफरेंशिएशन इज 1, e की पावर 6y अपॉन 6 का फिर से, तो e की पावर 6y अपॉन 6 इंटू 6 36, और फिर 1/3 भी मल्टीप्लाई कर दिया. सो ओवरऑल ये आपको मिला 3 टर्म. I2 इज दिस 3 टर्म, और I1 जो है वो तो आप इंटीग्रेट कर ही लोगे, सिंपल है. ठीक है, तो कभी क्वेश्चन में इतना कैलकुलेशन भी हो सकता है और कभी सिंपली भी इंटीग्रेट हो सकते हैं, इट टोटली डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन. सो दिस इज हाउ वी डिड द 4 रूल्स. अब आप क्या करोगे, अब आप बुक में जाना, ये रूल नंबर आपका 3rd, 1/n del m by del y minus del upon del x is a function of x alone, जो हमने अभी किया. नो नीड टू लुक एट द प्रूफ, अपनी समझ के लिए किसी को देखना है कि कैसे भाई ये आंसर कैसे आ गया, कैसे ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना, तो यू कैन ऑफ कोर्स गो विद द डिटेलिंग, अदरवाइज सिंपली सी द numerical examples of the rules. ठीक है, हमने भी मोस्टली सॉल्व भी देखे हैं, क्योंकि सॉल्व बिकम द मोर इम्पोर्टेंट. बट यहाँ पे आपके पास 6 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए. नाउ ये सारे 6 अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, फिर आपको इसके बियॉन्ड इस रूल को देखने की जरूरत ही नहीं होगी. सिमिलरली 1/m में del n upon del x minus del m by del y is a function of y alone.
So example number 1, 2 and then 3 examples. 5 questions है total, 2 solved, 3 unsolved. और किसी और बुक में भी देख सकते हो, प्रेजिक में देख सकते हो एग्जाम्पल्स. सो दिस इज हाउ. ठीक है, you will do the